Hello friends, once again welcome back to our channel PharmaGyan, and today we will discuss about sterilization versus depyrogenation in pharmaceutical industries. So what is the difference between sterilization and depyrogenation? Sterilization is the process of eliminating or destroying all forms of microbial life including bacteria, viruses, fungi and spores. While depyrogenation is the process of removing or inactivating pyrogens, which are substances that can cause fever when introduced into the fever, such as endotoxins. So स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है वो एलिमिनेट करता है और डिस्ट्रॉय करता है जो भी माइक्रोबियल लाइफ है, बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगाई और स्पोर्स को, जबकि डीपायरोजिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें रिमूव करते हैं और इनएक्टिवेट करते हैं पायरोजेंस को, ऐसे सब्सटेंसेस जो फीवर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, जिसको बॉडी में अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो फीवर कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं, एग्जांपल के लिए एंडोटॉक्सिन्स. The main purpose of sterilization is to ensure the complete elimination of all microorganisms in a given microbial or environmental environment to prevent contamination and the spread of infections. While in depyrogenation is primarily done to remove the pyrogens from the pharmaceutical products, medical devices or equipment to ensure patient safety and prevent adverse reactions. So स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, मेन जो पर्पस है स्टेरिलाइजेशन का वो क्या है कि एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स का एलिमिनेशन मेन पर्पस होता है. और डीपायरोजिनेशन का मेन जो पर्पस है, प्राइमरी पर्पस क्या है, पायरोजेंस को रिमूव करना और एंडोटॉक्सिन्स को रिमूव करना डीपायरोजिनेशन का मेन पर्पस है. Sterilization can be achieved through various methods including heat such as autoclaving and dry heat radiation such as gamma radiation, irradiation, filtration, chemical agents such as ethylene oxide or combination of these methods. While depyrogenation methods mainly involve heat treatment such as dry heat ovens or depyrogenating tunnels. Other methods such as filtration through specific pore size filters can also be used. So sterilization में जनरली ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, गामा रेडिएशन स्टेरिलाइजेशंस, केमिकल या फिर केमिकल स्टेरिलाइजेशन, फिल्ट्रेशंस, बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स हैं स्टेरिलाइजेशन की, जो हमने ऑलरेडी वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. वो आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं. और जो डीपायरोजिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें हम जनरली डीपायरोजिनेशन हॉट एयर ओवन्स हम यूज़ करते हैं डीपायरोजिनेशन के लिए, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी हम यूज़ करते हैं डीपायरोजिनेशन के लिए. The target of sterilization is all types of microorganisms including bacteria, viruses, fungi and spores, while in depyrogenation specially targets pyrogens which are bacterial endotoxins derived from the cell wall of certain bacteria. तो स्टेरिलाइजेशन में जो टारगेट होता है वो ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड स्पोर्स. जबकि डीपायरोजिनेशन प्रोसेस में जो टारगेट होता है पायरोजेंस होता है, एंडोटॉक्सिन्स होते हैं. जो एंडोटॉक्सिन कहाँ से डिराइव होते हैं, कहाँ से आते हैं, तो जो सेल वॉल होती है बैक्टीरियाज की, वहाँ से एंडोटॉक्सिन्स डिराइव होते हैं, मिलते हैं. Sterilization process usually require more rigorous validation as the goal is to achieve a complete elimination of all microorganisms. While in depyrogenation process also require validation, but the focus is more on the removal or inactivation of pyrogens rather than complete elimination of all microorganisms. So स्टेरिलाइजेशन में हम जनरली क्या करते हैं कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम इधर चेक करते हैं, वाइल इन डीपायरोजिनेशन में रिमूवल और इनएक्टिवेशन ऑफ पायरोजेंस और एंडोटॉक्सिन्स हम चेक करते हैं. दोनों ही प्रोसेस में हमें वैलिडेशन करना होता है.
Sterilization aims to eliminate all microorganisms while depyrogenation focuses on removing or inactivating pyrogens. Sterilization methods can vary depending on the material and purpose, while depyrogenation methods typically involve heat treatment. So generally स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जैसा कि वीडियो में हमारे अर्लियर बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एलिमिनेशन या फिर किल करते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में, और डीपायरोजिनेशन प्रोसेस में जो पायरोजेंस होते हैं उनको रिमूव करते हैं या फिर एंडोटॉक्सिन्स को हम रिमूव करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं। स्टेरिलाइजेशन की डिफरेंट मेथड्स होती हैं। स्टीम ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन हो गया, मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन हो गया, गैसियस स्टेरिलाइजेशन हो गया, केमिकल स्टेरिलाइजेशन हो गए हैं, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन हो गया। तो डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन की मेथड्स होती है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। वाइल डीपायरोजिनेशन जो मेथड है टिपिकली हीट इन्वॉल्व करती है, मतलब हीट से ट्रीटमेंट होता है डीपायरोजिनेशन का, और जो भी पायरोजेंस हैं या फिर एंडोटॉक्सिन्स हैं उनका रिमूवल हीट के थ्रू हम करते हैं जनरली। So thanks for watching PharmaGyan. Please don't forget to like, share and subscribe our channel PharmaGyan.